Okay, so Marxism is a philosophy came into existence to resolve the problems or to make a balance between the capitalist and the working class, right? Now, the revolutionary ideas were propounded by Karl Marx and Friedrich Engels. So here one point comes, Marxism was founded by whom? So Marxism was not only founded by Karl Marx but also founded by Friedrich Engels. These were two persons who all together formed this Marxism to make a balance between the capitalist or the owners of the industry and the working class, right? This philosophy was later modified and renamed as socialism by Lenin. Lenin was a person, as you all know, in Germany. He renamed this philosophy as socialism by just modifying some of its parts, right? Then comes the brief sketch of Karl Marx. Now, you have to know something about Karl Marx before reading about it. So Karl Marx, the name Karl Marx is not a full name. His full name was Karl Heinrich Marx, who was born in 1818, and he was born at Trier, is a place in Rhineland, in the continent of Prussia, in a Jewish family. Jewish is a religion. He studied history, law, philosophy at Berlin University, that is in Germany. He was migrated to England in 1849. He propounded this theory of social change. So one question comes like, who propounded the theory of social change? So that means the social change theory was propounded by Karl Heinrich Marx. He pointed that the society is divided into two parts. So he divided the society into two different categories. One is bourgeois, who were the rich person, upper class people, and capitalist or the owners. And second one is proletariat, working class, poor class, or you can say the suppressed class. Okay, bourgeois means capitalist or the owners, proletariat means working class or poor people. Getting my point? Next, this is the picture of Karl Marx and Henrik Friedrich Engels, right? Okay, now something about the principles of Karl Marx or Marxism. Yeah, the first principle is to bring about fundamental social, political, and economic changes in society through education. As we have already discussed yesterday, one of the given statement, or you may say definition of education by Nelson Mandela, was that education is the weapon through which you can change the world. So एजुकेशन एक वेपन होता है जिसको लेकर के हम दुनिया को बदल सकते हैं, इसीलिए इन्होंने भी वही किया. Education is a weapon through which they have they have planned to change the society. सोसाइटी को चेंज करना है और इसमें क्या क्या चेंजेस लाना है? फंडामेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस हम लाएंगे सोसाइटी में थ्रू एजुकेशन टू चेंज द कल्चर एंड इट्स स्ट्रक्चर. उस टाइम में जर्मनी में एज वेल एज द वर्ल्ड, मतलब पूरा का पूरा दुनिया जो है उसमें जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको हमें बदलना पड़ेगा, राइट, थ्रू एजुकेशन. हाँ, okay, wait a second, we are having some technical issues. Fine then. Yes, it is always against the capitalism notion. Now, capitalism notion means the capitalist or the industrialist, they were always against the capitalist. That means they support the poor people, before everything, they support the poor people and they always protest against the capitalist or you may say the industrialist. Okay, now moving on to the next one. It aims at productive capacity of the society. That means the society will be productive when its individuals are productive. That means एक सोसाइटी में अगर हमें प्रोडक्टिव लोग चाहिए तो फिर हमें एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. मतलब प्रोडक्टिव वो होता है जो सबसे ज्यादा स्किलफुल होता है, जो कि अपने स्किल से बहुत पैसे कमा सकता है, उसके साथ ही साथ सोसाइटी को चेंज कर सकता
सकता है, इसलिए हमें चाहिए प्रोडक्टिव सिटीजन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू एजुकेशन। ठीक है। इट सपोर्ट्स द वर्किंग क्लास, अभी मैंने बताया कि दिस सपोर्ट द वर्किंग क्लास और पुअर पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट एंड टू गेट देयर राइट्स। इसका मतलब ये होता है कि वर्किंग क्लास जो है उनको ये सपोर्ट करता है ताकि ये लोग रिवोल्ट करे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट और द इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट देयर राइट्स। उनका भी कुछ अधिकार है जो कि हासिल करने के लिए ये मार्क्सिज्म उन्हें मदद करती है। ठीक है। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स क्या होता है, रियलिटी क्या होता है, ट्रूथ क्या होता है, इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी। जैसे कि हमने रियलिज्म में देखा था, मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी, राइट। नॉन मैटेरियल जैसा कुछ चीज ही नहीं होता है, यहाँ पे मैटर जो आप चारों तरफ देख रहे हो, जो कि मैटेरियल वर्ल्ड में आपके चारों तरफ, वही रियलिटी होता है। मैन इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, जो कि नेचुरलिज्म में भी बोला गया था कि नेचर इतना बड़ा होता है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि मैन होता है। यहाँ पे भी बोला गया है कि मैन इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब नेचर में से निकल के आया है मैन। ठीक है। रीजन, थॉट, कॉन्शियसनेस आर ऑल इम्पोर्टेंट। यहाँ पे रीजन मतलब कोई भी कारण होना चाहिए, थॉट चिंतन होना चाहिए, या फिर कोई भी मतलब सोच होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए आपके पास, तभी जाकर के आपको रियलिटी मिलेगी। फिर माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल रियलिटी, दैट मीन्स माइंड जो होता है हमारा, आइडियलिज्म बोला गया है कि माइंड जो है यही सब कुछ होता है, इसके अंदर जो होता है इमोर्टल और इमैटेरियल चीजें। इमोर्टल मतलब इसका कोई देहांत नहीं होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, और इमैटेरियल मतलब ये मैटेरियल नहीं होता है, एब्सोल्यूट होता है, ये हम देख नहीं सकते माइंड के अंदर होता क्या है। उन्होंने बोला कि इसमें जो अंदर में है माइंड के अंदर, यही सब कुछ होता है, यही रियलिटी होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि माइंड इज द रिफ्लेक्शन, इट इज ओनली ए रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसका एक परछाई होता है, किसका, मैटेरियल रियलिटी। इसका मतलब हम जो भी सामने मटेरियल देखते हैं उसका एक जो फोटोकॉपी बन जाता है, जेरोक्स कॉपी अपने माइंड में आ जाता है। अगर हम अभी आपको बोलेंगे कि कार, जब हम आपको कार बोलते हैं, सडनली आपके दिमाग में कोई ना कोई कार का एक इमेज आ जाता है, इसका मतलब ये माइंड में आता है। इसलिए इन्होंने बोला है कि माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल रियलिटी। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी, थ्रू इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस एंड टेस्टिंग वी कैन गेट द रियल नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी ऑलवेज डील्स विद द नॉलेज एंड द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो जो है नॉलेज कहाँ से मिलेगा, इन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेट करो। आपको पता है इन्वेस्टिगेट करना मतलब क्या होता है, ढूंढना, वो भी ऐसे वैसे नहीं। इन्वेस्टिगेट मतलब कि हर एक सच्चाई को, एविडेंस को कलेक्ट करना है, उसे प्रूफ करना है, टेस्ट करना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। एविडेंस, एविडेंस जो होता है आपके, जो कि नॉलेज पाने के लिए ये एक मीडियम होता है, उसके बाद उसे टेस्ट करेंगे। पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो नॉलेज मिलेगा उसी को हम रियल नॉलेज बोल के एक्सेप्ट करेंगे। साइंस इज अ काइंड ऑफ रियल नॉलेज, साइंस एक रियल नॉलेज है, इन्होंने बोला। क्यों बोला, बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड। साइंस एक रियल नॉलेज इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अभी अगर बोला जाए कि साइंस में कोई भी एक सम हो या फिर इक्वेशन हो या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जिसमें एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, अगर बोला जाए इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो आप प्रूफ करके दिखा सकते हो कि यस इट इज द रियल आंसर। जैसे कि सिंपल सा अगर हम बोले कि आपको अगर बोला जाए 2+2 कितना होता है, तो आप सिंपल सब आप क्या करोगे, इसको ऐड कर लोगे और आपका आंसर 4 आ जाएगा। बार बार जो कोई भी आप ऐड करो, चाहे कोई भी ऐड करे, यही आंसर आने वाला है। जितनी बार भी आप करोगे यही आंसर आने वाला है, इसलिए इट कैन बी वेरीफाइड। प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिफाइंड नॉलेज। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारा जो नॉलेज है वो रिफाइन हो जाता है। रिफाइन मतलब और शुद्ध हो जाता है। मतलब कि जैसे आप पहली बार स्कूटी या फिर बाइक चलाए होंगे तो आपको चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, और जितना आप प्रैक्टिस करते गए आपका उतना परफेक्ट होता गया। ठीक है। फिर आता है एक्सियोलॉजी, वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज, एथिक्स अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। इन्होंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो होता है वो डिसिप्लिन होता है, स्पेशली अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में एक डिसिप्लिन बना रहना चाहिए, एंड दे नीड फॉर ए क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी। अच्छा अभी मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा इंडियन फिलोसोफर है जिसने बोला था क्लासलेस सोसाइटी हमें चाहिए? ये किसने बोला था, चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। ये तो वेस्टर्न फिलोसोफर बोले हैं, इंडियन फिलोसोफर किसने बोला है, चैट में बताइए।
यस, वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका, श्रेया पाठक, प्रीति, वेरी गुड. It was M.K. Gandhi, Mahatma Gandhi, who dreamt about classless society. Here in Marxism also, they believe in a classless society and they believe in discipline among the society. Now see, if this is a society, everyone should be very disciplined and they should lead a harmonious life so that everyone can cooperate with each other, everyone can understand the pain of other, and they can lead a harmonious life. Otherwise, this society will what? This will be divided into many groups, right? Now, respect for authority, value, labor, patriotism are important values. यहाँ पे important values क्या होता है? Respect for authority. Authority मतलब आपके ऊपर कोई भी अगर मतलब authority है, जैसे कि स्टूडेंट होता है, उसके ऊपर कौन होता है? एक अथॉरिटी होता है, उसका नाम होता है टीचर होता है या फिर प्रिंसिपल होता है. आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उसके बाद स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं. तो ये जो है अथॉरिटी है, अधिकारी, ठीक है. फिर होता है वैल्यू फॉर लेबर. यहाँ पे कौन से वैल्यू को माना गया है? रिस्पेक्ट करेंगे अथॉरिटी को, लेबर को भी हम वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से बता दिया गया है लेबर क्लास के साथ है मार्क्सिज्म, ठीक है. तो यहाँ पे लेबर को हम रिस्पेक्ट करें. लेबर मतलब सिर्फ श्रमिक नहीं होता है जो लोग जाके मजदूरी करते हैं, मजदूर नहीं होते हैं. लेबर वो होता है अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो उसको हम वैल्यू करेंगे, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे. एंड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, ठीक है, देश प्रीति, जो भी आप बोल सकते हो, पैट्रियोटिज्म, ये सारे वैल्यूज को इन्होंने रिस्पेक्ट किया है और प्रमोट किया है. लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड पेरेंट्स, एल्डर्स, वर्कर्स आर गिवन इंपॉर्टेंस. यहाँ पे देखिए, हम अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, जो भी बड़े हैं, और वर्कर्स जो हैं उनको हम प्यार देंगे और जो है सम्मान करेंगे, ठीक है, सम्मान करेंगे तो ही ये वैल्यू कहलाएगा मार्क्सिज्म के अनुसार. फिर आता है आपका एम्स ऑफ एजुकेशन. पहला तो आ जाता है आपका क्रिएट ए क्लासलेस सोसाइटी. देखिए, क्लासलेस सोसाइटी कब पैदा होगा, कब बन सकता है? जब हमारे सोसाइटी में हर तरह का जो कैटेगरी है ये सब अपने अपने एजुकेटेड हो जाएंगे. और एजुकेशन में तो ये पढ़ाया ही जाता है कि कोई भी हमसे डिफरेंट नहीं होता है. नो पर्सन इज शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, क्लास, सेक्स, इकोनॉमिकल क्लास और एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ऑल शुड रिमेन सेम एंड ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एजुकेशन उन सबको मिल गया, सब लिटरेट हो गए, तो सबको पता चल जाएगा और उनको भी ये ज्ञान मिल जाएगा कि कोई भी किसी भी चीज में कम नहीं होता है. हर एक का कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है और हर जो आदमी है उनका कुछ ना कुछ महत्व है यहाँ पे और उनका एसेंस है इस दुनिया में, राइट. डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक नॉलेज फॉर सोशल नीड्स. यहाँ पे इन्होंने बोला एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का काम यही होता है टू प्रोवाइड एकेडमिक नॉलेज. जो पढ़ाई का नॉलेज चाहिए उनको वो देंगे. फॉर किस लिए देंगे, मतलब रीजन क्या है? फॉर सोशल नीड्स, ताकि वो जाकर के सोसाइटी में उसको अप्लाई करें. अभी देखिए, जो भी हमारा एजुकेशन हमको प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो नॉलेज अगर सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है तो फिर उसका फायदा क्या रहा? सोसाइटी अगर डेवलप नहीं हो सकता है तो फिर क्या फायदा, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हमें सोशल नीड्स को भी ध्यान में रखना है. फिर आता है आपका एनकरेजिंग कॉम्पिटेंस इन वोकेशनल लाइक एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी. ये वाला पॉइंट बहुत ही करेंगे वोकेशनल फील्ड्स को, जैसे कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, ठीक है. एग्रीकल्चर जो है उसको हम बढ़ावा देंगे, टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देंगे. नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट ऑफ बीइंग इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है? मेहनती, मेहनती हो जाता है. यहाँ पे एक बच्चा है जो कि बहुत मेहनत करता है और वो जाकर के आगे एक अच्छा आदमी बन जाता है. तो ये हम उन्हें सिखाएंगे टू बी इंडस्ट्रियस, टू बी लेबरियस और टू बी हार्ड वर्किंग. हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे मतलब आप अच्छे से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे और जिंदगी में जो चाहते हो उसे हासिल करोगे. डेवलपमेंट ऑफ हैबिट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ माना जाता है, इसलिए आपको अपना जो है हेल्थ को
मेंटेन करना है ताकि आप एक सुस्त और तंदुरुस्त आदमी बन सके, आगे जाकर के आप अपना इंडस्ट्रियस क्वालिटी से आप सोसाइटी को चेंज कर सके। फिर आता है आपका करिकुलम। करिकुलम में क्या क्या रहेंगे, इसमें सारे लिबरल स्टडीज रहेंगे। लिबरल मतलब आप जो भी पढ़ते हो, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी पढ़ते हो, ये होता है आपका लिबरल। अगर हम बोले तो बीटेक, एमबीए, ये जो होता है एमसीए, ये वगैरह जो कोर्सेस होते हैं, बी फार्मा, ये वगैरह जो भी कोर्सेस होते हैं, ये सब होते हैं वोकेशनल कोर्सेस, ठीक है। लेकिन लिबरल कोर्सेस वो होते हैं जो हमने पढ़ा है, आर्ट साइंस कॉमर्स, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे सारे लिबरल स्टडीज को पढ़ाए जाएंगे, उसके साथ ही साथ और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए, जो हमने एम जो फिक्स किया था उसको फुलफिल करने के लिए हम पहले तो बच्चे को लिबरल एजुकेशन देंगे, जैसे कि नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ये पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चे का जो नीड है, अगर बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके हिसाब से हम उसको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको मतलब कि जूलॉजी पढ़ाएंगे, बॉटनी पढ़ाएंगे, धीरे 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 उसका पार्ट हो जाएगा। उसको क्या मतलब क्या पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर उसको एनाटॉमी पढ़ना है तो उसको एनाटॉमी पढ़ाएंगे, अगर उसको ब्लड रिलेटेड पढ़ना है या फिर उसको मेडिसिन लाइन में जाना है तो फिर उसको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लिबरल कोर्स, बट वी विल प्रोवाइड सम वोकेशनल सब्जेक्ट्स फॉर फुलफिलिंग चाइल्ड नीड, राइट। उसके बाद आता है आपका बेसिकली इट वुड इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैथ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे जनरली इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी रहेगा, जैसे कि ड्रामा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इसमें भी रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या क्या रहेंगे यहाँ पे देखिए। मार्क्सिज्म मॉडर्न थ्योरी है, क्योंकि ये तो 90s में आया था, मतलब 19th सेंचुरी में आया था, इसलिए एक मॉडर्न मेथड है जिसमें स्पेशली हम लोग साइंटिफिक मेथड और जो ट्रेंडिंग मेथड उस टाइम का था, ग्रुप डिस्कशन मेथड था, ह्यूरिस्टिक मेथड, और इसको हम बोल सकते हैं डिस्कवरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डिस्कवरी। कोई भी चीज ढूंढ निकालना, ठीक है, ऑलरेडी होता है, हमें डिस्कवर करना होता है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच, जिसमें कोई भी तथ्य जो होता है, कोई भी चीज होता है, कोई भी सीक्रेट होता है, इसको हम ढूंढ निकालते हैं, ठीक है, डिस्कवर करते हैं, इसलिए ह्यूरिस्टिक अप्रोच को डिस्कवर अप्रोच भी बोला गया है। साइंटिफिक मेथड एंड ऑल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और जो साइंटिफिक मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। फिर आता है आपका रोल ऑफ स्कूल। स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। स्कूल शुड बी सेटअप, मैनेज्ड एज वेल एज फिनांस्ड बाय द स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्कूल जो एक स्कूल है, इसको कौन चलाएगा, पहला तो इन्होंने बोला स्कूल शुड बी सेटअप। सेटअप मतलब बनाना होता है, स्कूल बनाना मतलब स्कूल तैयार करना, स्कूल को मैनेज करना और स्कूल के लिए पैसा खर्च करना, ये जो सारा काम है वो कौन करेगा, स्टेट करेगा। स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है, स्टेट मतलब हमारे जैसा राज्य नहीं होता है, ये कंट्री होता है, ठीक है, कंट्री, उनका जो गवर्नमेंट है उसको ये सब करना है। स्कूल सेटअप करेगा, स्कूल को मैनेज करेगा और उसके लिए पैसा भी खर्च करेगा। इट शुड बी सेपरेटेड, दैट मीन्स स्कूल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च। वहां पे क्या होता है, वेस्टर्न कंट्री में आपको पता है, वहां पे रिलीजियस इंस्टीट्यूट मतलब चर्च ही कहलाता है। तो पहले क्या होता था, आपको पता है बहुत सारे कन्वेंट स्कूल होते हैं, अगर किसी ने वहां पे पढ़ाई किया होगा तो पता होगा। सो कन्वेंट स्कूल क्या होता है, ये क्रिश्चियनिटी ओरिएंटेड या फिर आप बोल सकते हो चर्च अथॉरिटी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी होता है चर्च, और उनके जो फादर होते हैं या फिर जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो सब क्रिश्चियन टीचर्स होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, पढ़ाई जितना होता है और उतना ही उनका जो होता है रिलीजियस प्रोपागेशन होता है। इसका मतलब प्रीच करते हैं, मतलब धर्म प्रचार करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता था, चर्च के जो अथॉरिटी है वही स्कूल का सारा बोझ उठाते थे। लेकिन इस टाइम में बोला गया नहीं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से हमें स्कूल को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल जो है वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज सेक्युलर एंड एवरीवन इज इक्वल हियर। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट शुड प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बता दिया गया है कि स्कूल में साइंस और टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। दिस फिलोसफी हैज सजेस्टेड फॉर ए कॉमन स्कूल सिस्टम। देखिए,
कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब जैसे कि हमारा सिस्टम अभी है ना, मतलब था 10+2 स्कूलिंग सिस्टम, ठीक है, कॉमन होना चाहिए पूरे देश में, पूरे देश में एक ही सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि आगे होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है एनईपी 2020 के हिसाब से 5+3+3+4, यही ना, 5+3+3+4, ये कॉमन स्कूल सिस्टम होने जा रहा है, इसीलिए इन्होंने बोला कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, कॉमन स्कूल सिस्टम क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हर तरह के बच्चे, हर कॉर्नर के, मतलब देश में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इधर भी है उधर भी है, सो दैट इज वाई हर एक बच्चे को जो है हम उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और सबको एक ही प्रकार का एजुकेशन देंगे, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। टू प्रोवाइड इक्वल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड वी हैव टू प्रोवाइड सम कॉमन स्कूल सिस्टम। रोल ऑफ टीचर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीचर ऑब्वियसली एक फैसिलिटेटर रहेगा, who would always motivate children for being democratic। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मैंने जब पढ़ाया था पिछली क्लास में बोला था इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं। हम यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा टू बी डेमोक्रेटिक। ही मस्ट अराउज इंटरेस्ट इन साइंस अमॉन्ग चिल्ड्रेन। अराउज मतलब क्रिएट करना, इनको मतलब जो टीचर होता है इनका काम ये होता है कि बच्चों के अंदर साइंस पढ़ने की जो इच्छा है उसे जागरूक करना, उससे अराइज करना और उससे बढ़ावा देना, ठीक है। ही शुड मेंटेन सच अ क्लासरूम दैट इट लुक्स लाइक अ मिनी सोसाइटी विथ नो डिस्क्रिमिनेशन। मैंने अभी बताया था कि क्लासलेस सोसाइटी कब बनेगा, जब वो टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाएगा कि क्लास में कोई भी बच्चा डिफरेंट नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं, तब जा करके बच्चा जो है वो सीखेगा कि क्लासलेस सोसाइटी का मतलब क्या होता है। इसीलिए स्टूडेंट को सिखाने के लिए टीचर क्या करेगा, जो हमारा क्लास है उसको वो एक मिनी सोसाइटी बना देगा जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, बॉयज गर्ल्स, अपर क्लास लोअर क्लास, फेयर कलर डार्क कलर, शॉर्ट हाइट लॉन्ग हाइट, कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, तब जाकर के स्टूडेंट को क्लासलेस सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। रोल ऑफ लर्नर क्या रहेगा, दे आर द फ्री लर्नर्स। यहाँ पे रोल ऑफ लर्नर क्या होता है, फ्री लर्नर होता है हु लर्न फ्रॉम द नेचर एंड आर गिवन फीडबैक फॉर बेटर लर्निंग। यहाँ पे लर्नर वही होता है, यहाँ पे फ्री लर्नर होता है वो नेचुरली जो भी चीज सीखता है और उसे फीडबैक भी मिलता है, और जो टीचर्स है वो सेटअप अरेंज करवाते हैं। ये खत्म हो गया आपका मार्क्सिज्म। अभी आ गया आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये दोनों पिक्चर आप देख लीजिए, सोरेन केकेगार्ड और जॉन पॉल सार्ट्रे। चलते हैं इंट्रोडक्शन। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ मॉडर्न फिलोसफी इमर्जिंग फ्रॉम द 19th सेंचुरी। ये दोनों जो मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये दोनों के दोनों 19th सेंचुरी में आए थे और ये मॉडर्न फिलोसफी है, ठीक है। इनका मानना सबसे ज्यादा होता है द एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब हम लोग यहाँ पे जीवित है ना, ये तो मान लो ये अर्थ है, राइट। अर्थ पे हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अभी हम यहाँ पे लीव कर रहे हैं, मतलब वी आर लिविंग हियर, हम लोग यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जिंदा है, अभी तक जिंदा है, ठीक है। टू लीव, यहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। इनका मतलब होता है एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ द ह्यूमन वे ह्यूमंस फाइंड देमसेल्व्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा। द नोशन इज दैट ह्यूमन एग्जिस्ट फर्स्ट एंड देन ईच इंडिविजुअल स्पेंड्स अ लाइफ टाइम चेंजिंग देयर एसेंस और नेचर। एक यही लाइन है जिसको आपको समझना है, इससे अगर समझ गए तो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला ह्यूमन एग्जिस्ट फर्स्ट, पहले हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पर जन्म लिए, उसके बाद देन ईच इंडिविजुअल स्पेंड्स अ लाइफ टाइम चेंजिंग, मतलब कि उसके बाद हमें, मान लीजिए हम यहाँ पर पैदा हुए, उसके बाद हम बड़े हुए, स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में पढ़े, फिर अभी नेट एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, फिर जा करके हम कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, और जब रिटायर करेंगे तो आपका नाम हो जाएगा प्रोफेसर डैश एंड डैश, जो भी है मिस्टर एंड मिसेस जो है वो स्किप हो जाएगा और आपका प्रोफेसर यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो आपका जो ये आइडेंटिटी बना प्रोफेसर का, ये कैसे बना, जब आप पहले एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद ही आपका आइडेंटिटी बनता है। अगर कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका आइडेंटिटी कहाँ से बनेगा। इसीलिए इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबने बोला मटेरियल इज इम्पोर्टेंट, नेचर इज इम्पोर्टेंट, माइंड इज इम्पोर्टेंट। इन्होंने बोला अरे भाई ये सुनो, पहले हम एग्जिस्ट तो करें, अगर हम जिंदा रहे तब जा करके देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
इसलिए इन्होंने बोला एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, देन if we exist then we can find out our identity and we can lead a very better life. It attained its zenith, zenith मतलब टॉप होता है, ये सबसे टॉप पे पहुंच गया है यूरोप में फॉलोइंग द डिसएनहांसमेंट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया, जापान में 2 बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए हैं हिरोशिमा और नागासाकी में, तब वहां पे बहुत सारा नुकसान हुआ था, नॉट ओनली इन जापान, दुनिया भर में बहुत सारा नुकसान हुआ था। उस टाइम में सबको सिर्फ यही लगा कि शायद इस वर्ल्ड वॉर में पूरा का पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा और हम भी मर जाएंगे। तो उस टाइम में सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, सबको जीने की इच्छा होती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है, लेकिन बहुत सारे मर गए। तो इसीलिए ये वाला एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी इसलिए आया क्योंकि ये सबको जीना सिखाने लगा। इन्होंने बोला कि एग्जिस्ट करना सीखो, इस सिचुएशन से उभर कर आगे जाने सीखो, और यहाँ पे हमें एग्जिस्ट करना है क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना होता है जिंदगी में। और इनका जो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर कौन है, सोरेन किरकेगार्ड। फर्स्ट पिक्चर जो मैंने आपको दिखाया था, सोरेन किरकेगार्ड 1813 में जन्म हुआ, 1855 बहुत अर्ली एज में इनका डेथ हो गया। वो कौन थे, वो एक डैनिश मिनिस्टर, डैनिश मतलब डेनमार्क का कंट्री होता है, ठीक है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं इंडियन होते हैं, वैसे डेनमार्क में जो रहते हैं उन्हें डैनिश बोला जाता है। तो डैनिश मिनिस्टर थे वहां का और एक फिलोसोफर थे, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। समझ में आ गया। चीफ कंट्रीब्यूटर्स किसने इस एग्जिस्टेंशियलिज्म में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है? सबसे पहले तो सोरेन किरकेगार्ड, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फर्स्ट यूरोपियन फिलोसोफर हु बियर्स द एग्जिस्टेंशियल लेवल। ये फर्स्ट यूरोपियन फिलोसोफर है जिसने एग्जिस्टेंशियलिज्म को फाइंड आउट किया था। उसके बाद इसमें ज्यादा से कंट्रीब्यूशन कौन किया है? मार्टिन हेडगर। मार्टिन हेडगर उसके बाद आए, 1889 में आए, 1976 में उनका देहांत हुआ। उनका एक बुक था, वो बुक का नाम है बीइंग एंड टाइम, ये आपको याद रखना होगा। मार्टिन हेडगर ने बुक लिखा था बीइंग एंड टाइम, गिव अ वेरी इंप्रेसिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका जॉन पॉल सार्ट्रे, स्ट्रेस्ड अपॉन द मैन्स एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स पास्ट एंड हिज एक्सेस। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। बोला जाता है जॉन पॉल सार्ट्रे इज द सेकंड फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्योंकि इन्होंने बहुत एक अहम भूमिका निभाई है यहाँ पे, और इन्होंने ये जो बोला है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब एसेंस से पहले आता है एग्जिस्टेंस। ये जो इन्होंने बोल दिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, इसका मतलब पहले आता है एग्जिस्टेंस, फिर आता है आपका एसेंस। चलते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स में। फॉर द एग्जिस्टेंशियलिस्ट रियलिटी इज बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इनके लिए रियलिटी क्या होता है, आपको क्या लग रहा है क्या रियलिटी होना चाहिए? इन लोगों ने बोला कि रियलिटी तो वही होता है कि हम जिंदा हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, यही हमारी रियलिटी है, इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जिंदा हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यही हमारे लिए रियल होता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट वांट ह्यूमन बीइंग्स टू बी विदाउट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है पता है? फिजिक्स मतलब हम जो चारों तरफ मैटर देख रहे हैं, मेटाफिजिक्स मींस बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, एंड मेटाफिजिक्स जो है ये बियॉन्ड द यूनिवर्स होता है, मतलब बियॉन्ड द मैटेरियल वर्ल्ड होता है। इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म बोले कि ऐसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। मेटाफिजिक्स नामक कोई चीज नहीं होता है, हम इस पृथ्वी पे जिंदा है, वही रियलिटी है। इसके अलावा जो हम बोल रहे हैं यूनिवर्स, मैटेरियल, स्पिरिट, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। दे विश टू रिस्टोर द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग which he or she has lost in his advanced technology and mechanized society। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है, इसको आपको मैं समझा देता हूँ। ये क्या होता है, इन्होंने बोला देखिए हर एक फिलोसफी में आपको देखने को मिल जाएगा, किसी ने मैटर पे इंपॉर्टेंस दिया है, किसी ने स्पिरिट पे इंपॉर्टेंस दिया है, किसी ने नेचर पे इंपॉर्टेंस दिया है, किसी ने माइंड पे इंपॉर्टेंस दिया है, किसी ने एक्सपीरियंस में दिया है। लेकिन कोई भी फिलोसोफर या कोई भी फिलोसफी जो है मतलब ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। इसका मतलब वही होता है ना कि सब काम करे ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप इंपॉर्टेंस दो और किसी को, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए तो आदमी जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज जो दुनिया है सब इसी के वजह से। इसीलिए वो ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसको ढूंढने के लिए ये कोशिश कर रहा है। क्यों?
क्योंकि हम जो ये एडवांस सोसाइटी में, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में आजकल हम रोबोट का यूज करने लगे हैं, टावर, कंप्यूटर्स, ये सारा काम वो लोग कर रहे हैं, और ह्यूमन बींग जो है वो अपना जो आइडेंटिटी है, सुप्रीम क्रिएचर बोलकर जो आइडेंटिटी है वो गवा दे रहा है। मतलब हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं लेकिन हम अपना आइडेंटिटी भी लूज करने लगे हैं। जैसे कि आपने रोबोट मूवी में भी देखा होगा, वहां पे क्या होता है, एक रोबोट जो है वो इंसान के ऊपर कब्जा करने लगता है, क्योंकि हमने अपना आइडेंटिटी खो दिया और सारा कुछ रोबोट को दे दिया। वैसे ये हो रहा है। इसीलिए मार्टिन हेडगार, सोरेन किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्ट्रे जैसे एक्जिस्टेंशियलिस्ट, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें जो ह्यूमन बींग का स्टेटस पहले जैसा था वैसा ही करना है, ये मैकेनिक सोसाइटी और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी से हमें दूर चले जाना है। ठीक है, ह्यूमन बींग इज नॉट ह्यूमन बींग बट ह्यूमैनिटी। एक इंसान इंसान नहीं होता है जब तक उसके अंदर इंसानियत नहीं होता है। अगर किसी को हम दर्द में देख करके भी चुप बैठते हैं तो फिर हम ह्यूमन बींग्स नहीं कहला सकते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, ह्यूमैनिटी ही नहीं है। इट implies that each human being's action while subjectively inspired and influenced by other people। इसका मतलब होता है हर एक का एक्शन और किसी के ऊपर इंस्पायर करता है या फिर इम्पैक्ट डालता है, या तो फिर किसी से इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम अपने टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर हम जो काम करते हैं उसे देख करके हमारे जूनियर्स, हमारे जो लविंग जूनियर्स हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, existentialists believe that the person's mind is the source and substance of all knowledge। हमको जो भी नॉलेज मिलता है ना, ये सब पर्सन के माइंड से मिलता है, मतलब कि दिमाग से मिलता है। हम जो सोचते हैं, सोचने लगते हैं, उसी से हमें नॉलेज मिलती है। द रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स फ्रॉम द इनवर्डनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब हम जितना अपने अंदर, इनवर्ड मतलब अपने अंदर, हम जब तक अपने के अंदर नहीं देखते हैं, मतलब खुद के अंदर देखो, आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि हम एग्जिस्टेंस को तभी रियलाइज कर सकते हैं जब हम अपने अंदर देख के अपना जो है मतलब इंटरेस्ट, एबिलिटी को बयां कर सकते हैं। दैट नॉलेज इज वैलिड विच इज ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल। ये तो सही है। इन्होंने बोला कि अगर कोई नॉलेज इंडिविजुअल, कोई आदमी का काम का नहीं है, तो फिर वो वैलिड वैल्यू नहीं होता है, या फिर वैलिड नॉलेज नहीं होता है। वही नॉलेज जो इंसान को मदद करता है वो एक नॉलेज माना जाएगा। मेटाफिजिक्स क्या होता है, अभी मैंने बताया कि इट डज नॉट गिव एनी फाइनल आंसर टू अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी क्या है इन्होंने ठीक से नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने तो बोला कि एग्जिस्टेंस ही होता है ना रियलिटी। एग्जिस्टेंस, यू आर एग्जिस्ट, सॉरी, you live in this country, you live in this world, that is your reality. For them reality is being or existence of an individual। अभी मैंने बता दिया था। truth is revealed in the subjective experience of living and they say we experience the truth within us। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला कि truth क्या होता है, what we experience, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वही ट्रूथ होता है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही रियलिटी है। ठीक है, इट कैन बी सॉट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर ओन फीलिंग, ओन सिचुएशन एंड आवर सोल। ये जो है ट्रूथ जो है वो कहाँ से मिलेगा, हम जो ओन फीलिंग, जो हम खुद फील करते हैं, खुद जिस सिचुएशन में आते हैं और अपने सोल के अंदर जो कुछ भी मतलब आवाज सुनाई देती है, वही आपके लिए रियलिटी होता है। क्योंकि आपके अलावा एक इंसान के लिए इंसान ही रियलिटी है, इसके अलावा और कोई भी चीज रियलिटी नहीं होता है। दैट इज रियल विच इज पर्सनल। इसका मतलब रियलिटी पर्सनल होता है। आपके लिए रियलिटी जो है मेरे लिए शायद वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अर्थ जो है वो घूम रहा है, आप सोच रहे हो कि अर्थ जो है वो सूरज की तरफ घूम रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि जो डे एंड नाइट होते हैं वो सन के वजह से होता है, आपको लगता है ये सन के मूवमेंट के लिए होता है। तो हमारा जो है व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, इसीलिए रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ह्यूमन बीइंग्स फंडामेंटल ड्राइव और अर्ज शुड बी टू एग्जिस्ट। अर्ज या फिर ड्राइव, ये तो पता है आपको, मतलब इच्छा। ठीक है, आपका हमेशा यही कोशिश रहेगा कि आप एग्जिस्ट करो। ठीक है, आप जिंदा रहोगे तब ना कुछ कर पाओगे। दिस विल गिव हिम और हर अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन लाइफ। जब आप जिंदा रहोगे तब जाके आपके लाइफ में कुछ मीनिंग रहेगा और आपका लाइफ का कुछ सिग्निफिकेंस भी रहेगा। फिर आता है नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी। देयर वाज नो नॉलेज बिफोर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आफ्टर ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज के पर्सपेक्टिव में। देखिए इन्होंने बोला
ह्यूमन बीइंग जब तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब इंसान से पहले कुछ नॉलेज नहीं था और इंसान के बाद कोई नॉलेज नहीं आएगा। इसका मतलब जो बीच का पीरियड है, जब तक हम जिंदा है तब तक नॉलेज है। हमारे पहले कुछ नॉलेज नहीं था, हमारे बाद भी कोई नॉलेज नहीं आने वाला, ठीक है। ऑल दैट शी और ही नोज इज बाय चॉइस। जो भी जानना है वो उसके चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूं मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर क्या मुझे साइंस का नॉलेज मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और आपको शायद मैथ्स में नॉलेज हो और आपको इंटरेस्ट हो, तो आपको क्या मिलेगा? यस, आपको मिलेगा। सो नॉलेज डिफर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर चॉइस। जैसे आप चॉइस करोगे वैसे आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज इज वैलिड विच इज ऑफ द वैल्यू टू इंडिविजुअल। अभी मैंने बताया वही नॉलेज वैल्यूएबल होता है जो इंसान के काम में आता है। सेल्फ नॉलेज इज द की टू ऑल नॉलेज। खुद जो नॉलेज हम गेन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, वही रियल नॉलेज होता है। वैल्यू क्या होता है एक्सियोलॉजी में? देयर इज नो एब्सोल्यूट कोड टू अलाउ एज एक्सिस्टेंशियलिस्ट पिंस फेथ इन एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट कोड नहीं होता है कि यही वैल्यू होना चाहिए, यही वैल्यू आप फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे सब एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट मतलब कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं रहेगा, मतलब जो आपको अच्छा लगे वही वैल्यू होता है। जो आपको किसी काम का आ गया, कोई भी वैल्यू आपके काम में, मतलब इसका कोई काम है आपकी जिंदगी में, तो वो वैल्यू बन जाएगा आपके लिए। अगर इसका कुछ काम नहीं बना तो फिर ये वैल्यू नहीं है आपके लिए। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, राइट। They agreed that as long as the empirical spirit remains alive, it must remain open to correction and there is no fixed values. यहाँ पे वैल्यू जो है ना, ये फिक्स नहीं होता है। ये वैल्यू, पहले वैल्यू आ गया कोई भी एक वैल्यू, उसको हम देखेंगे, अगर ठीक लगा तो सही है, अगर ठीक नहीं है तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर हम इसे अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इस वैल्यू को हम मानेंगे, राइट। समझ में आ रहा है? Human being invents law for herself or himself and does not pin his faith in pre-established value. जो लॉ है या फिर जो वैल्यू है, ये हम खुद एस्टेब्लिश करते हैं, ना कि पहले से जो वैल्यू है उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट। अभी आपका आ गया एम्स ऑफ एजुकेशन। मेजर एम इज टू प्रोवाइड लिबरल एजुकेशन फ्रीइंग मैन फ्रॉम हिज आइसोलेशन एंड हिज एनोनिमिटी। यहाँ पे मैन जो है, मैंने बताया था 1945 में सिचुएशन ऐसा था कि वो अकेला रहने लगा और वो जो है दुखी रहने लगा। इसलिए एजुकेशन इसलिए दिया जाता था कि मैन अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस कर सके, ठीक है। उन्हें ये न लगे कि हम किसी के अंडर में है, थ्रेट में है, ठीक है। फ्रीइंग हिज माइंड फ्रॉम द कंफ्यूजन दैट प्रिवेंट फ्रॉम सीइंग हिज सिचुएशन एंड हिज पावर्स। कभी कभी ये होता है, हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने अंदर जो क्वालिटी है, जो सिचुएशन पावर्स हमारे अंदर है, ये सब हम नहीं देख पाते हैं। तो ये सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपने आप को ऐसे बनाएंगे ताकि हम जो सिचुएशन को देख सकें और अपने अंदर का पावर जो है वो भी परख सके। एग्जिस्टेंशियलिज्म वांट्स टू एजुकेट द होल चाइल्ड, नॉट जस्ट वन चाइल्ड। इसका मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। According to existentialism, education should make a man subjective and should make him conscious for his individuality. Being self-conscious, he will recognize self and he will get an understanding of being. मैंने अभी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सेल्फ। खुद को देखो, खुद को सोचो और खुद के बारे में सोचो, जबकि आपको पता चले कि आप ही सबसे इंपॉर्टेंट हो इस दुनिया में। टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, वही बात, सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना है, ठीक है। फिर आता है पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड कैरेक्टर। वो बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन लाइफ में कैरेक्टर। अब अगर आपको एक अच्छा सा कैरेक्टर डेवलप करना है तो आपको बहुत सारे डिसिप्लिन भी फॉलो करने होंगे। ऑप्टिमाइज पोटेंशियल मतलब अपने अंदर जो गुण है, अपने अंदर जो पावर्स है, अपने अंदर जो हुनर है, उससे हमें बाहर लाना है। क्रिएटिविटी दिखाना है। एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीने का तरीका जो है वो उससे हम थोड़ा सा क्वालिटेटिव बनाएंगे, ठीक है। करिकुलम क्या रहेगा? वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। इन टीचिंग आर्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट एनकरेजेस इंडिविजुअल फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। यहाँ पे देखिए, हमने बोला कि वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन मतलब ही होता है वोकेशन, इसका मतलब प्रोफेशन। अगर कोई वोकेशनल एजुकेशन पढ़ता है तो आगे जाकर के वो किसी काम में अपने आप को जोड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, मोर देन कॉपिंग एंड इमिटेटिंग। यहाँ पे हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, इमिटेट नहीं करना है, डुप्लीकेट नहीं करना है, और हमें क्या करना है, अपना क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन एबिलिटी को शो करना है।
द सेंट्रल प्लेस इज गिवन टू ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, पोएट्री को इंपॉर्टेंस दिया गया है, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, नॉवेल्स, इन सबको इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। एंड द एक्सपर्ट द ह्यूमन इम्पैक्ट इन रिवीलिंग मैंस इनहेरेंट क्विल्ट सिन, मतलब जो पाप होता है ना, पाप बोलते हैं ना, पाप होता है, कष्ट होता है, या फिर आपको जो भी तकलीफ होती है, ट्रेजेडी, डेथ, लव, इन सब से हमें क्या करना है, जो अपने अंदर जो ये सारे जो पेन, सफरिंग, ट्रेजेडी जो है, इनको दूर करना है, और जो अच्छा है जैसे कि लव हो गया आपका, ये सबको हमें मतलब कि इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, ठीक है। मेथड ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए, लर्निंग इज सेल्फ बेस्ड, मतलब लर्निंग जो है वो अपने हिसाब से, मतलब कि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, तो हर एक बच्चा डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर, तो सेल्फ पेस मतलब कि आप अपने तरीके से पढ़ो और अपने स्पीड से पढ़ो, आपको कोई नहीं बोलेगा कि जल्दी जल्दी पढ़ो, सेल्फ डायरेक्टेड, अपने आप ही आप जैसा पढ़ना चाहो पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट दिया जाएगा टीचर के साथ, स्टूडेंट टीचर का एक क्लोज रिलेशन रहेगा, एंड उसको ओपनली एंड ऑनेस्टली वो रिलेट करेगा अपने लाइफ से, ठीक है। ऑब्वियसली ऑन सेल्फ रिस्पेक्टिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म टू एम्प्लॉय ट्रेडिशनल लेक्चर, रिसाइट, असाइन, टेस्ट मेथड। देखिए लेक्चर मेथड, रिसाइट मेथड, असाइन एंड टेस्ट मेथड, ये सबको मिलाकर के इन्होंने एक मेथड बना दिया है, एंड इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर डेवलपिंग द इंडिविजुअल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। Any method which fosters group thinking and group action would be alien to existentialism। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि इन्होंने बोला कोई भी ग्रुप एक्टिविटी जैसे कि टीम वर्क हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इस प्रकार का कोई भी अगर एक्टिविटी है तो ये एक मेथड ऑफ लर्निंग नहीं बोला जाएगा, बिकॉज इट इज एलियन फॉर द एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये शत्रु होता है, ये दुश्मन होता है इन लोगों के लिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलता है कि इंडिविजुअल पे फोकस करो, ना कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे। अगर यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपको दे दिया जाएगा तो ये कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका रोल ऑफ द स्कूल। स्कूल क्या रहेगा, इट इज द प्लेस फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल मेथोडोलॉजी। ये बच्चे का जो डेवलपमेंट सोच रहा है स्कूल, और अप्लाई कर रहा है किसको, एजुकेशनल मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रहा है। एंड यस, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फैमिली, चर्च और स्टेट उसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी राइट टू एजुकेट, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फैमिली, चर्च और स्टेट प्रोवाइड कर सकता है। द स्कूल शुड प्रोवाइड एन एटमोस्फियर वेयर द स्कूल डेवलप इन अ हेल्दी वे। स्कूल ऐसा एक एटमोस्फियर क्रिएट करेगा जहां पर हर एक बच्चा एक अच्छे तरीके से, हेल्दी वे मतलब कोई अच्छा तरीके से वो पढ़ सके। एनी सब्जेक्ट इन द स्कूल, इवन इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एथलेटिक्स एंड म्यूजिक, कैन प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन फॉर टीचिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एम ऑफ स्कूल टास्क शुड बी नर्चर सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन को ज्यादा फोकस दिया गया है, और सेल्फ इवेल्युएशन, खुद को देखो, खुद को आप मतलब कि डिसिप्लिन करो और खुद को इवेल्युएट करो, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया रोल ऑफ टीचर। टीचर्स रोल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स डिफाइन देयर ओन एसेंस बाय एक्सपोजिंग देम टू वेरियस पाथ। यहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट को, ताकि वो अपने अंदर झांक के देखे, स्टूडेंट अपने अंदर देखे कि कौन सा क्वालिटीज है, ठीक है, और क्या वो कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है। सिंस फीलिंग इज नॉट डाइवर्स फ्रॉम रीजन इन डिसीजन मेकिंग, द एक्जिस्टेंशियलिस्ट डिमांड दैट एजुकेशन ऑफ द होल पर्सन नॉट जस्ट द माइंड। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एजुकेशन ऑफ द माइंड नहीं होता है, मतलब कि आपको सिर्फ बहुत सारा बुक्स दिया जाएगा पढ़ने के लिए, बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा, तो आपका माइंड तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने बोला क्या है कि माइंड को तो इंटेलेक्चुअल मतलब जो कंपोनेंट दिए जाएंगे, उसके साथ ही साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में भी हम सोचेंगे। फिर आता है लर्नर। लर्नर यहाँ पे फुल फ्रीडम में पढ़ता है, अपने आप को वो पहचानने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है, ठीक है। एंड कन्वर्ट इम्परफेक्शन इनटू परफेक्शन। इसका जो भी इम्परफेक्शन था, उसके अंदर जो भी इम्परफेक्ट क्वालिटीज थे, उसको वो परफेक्ट बनाएगा। दे डू नॉट वांट द चाइल्ड टू बिकम सेल्फिश, ऑटोक्रेटिक एंड इरेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिस्ट कोशिश करते हैं कि बच्चे को सेल्फिश ना बनने दें, ऑटोक्रेटिक मतलब जो बोलते हैं ना तुगलक शासन, वैसा नहीं करने दें, और इरेस्पॉन्सिबल होने को नहीं देते हैं। फ्रीडम इज नीडिंग फॉर ओनली फॉर नेचुरल डेवलपमेंट। फ्रीडम अगर दिया जाएगा तभी जाकर के एक स्टूडेंट जो है वो नेचुरली डेवलप कर पाएगा। एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड पावर एंड नीड। ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसको पढ़ाई करवाएंगे।